بسم الله الرحمن الرحيم والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون. کیونکہ یہ تقریریں کرنا مفکر اور مقرر لوگوں کا کام ہوتا ہے. میں نے اس میدان میں کبھی قدم نہیں رکھا، لیکن جب کوئی بولتا ہے دوسرا تو خون گرم ہو جاتا ہے، پھر یہ جی چاہتا ہے. لیکن بات یہ ہے کہ اگر کوئی بہت بڑی ڈگری میرے پاس ہوتی میں اس کا سہارا لیتا، لیکن تھوڑا تجربہ ہے وہ اور اللہ کی مدد شامل حال ہے. بس اللہ کا سہارا لے کر آپ کے درمیان چند منٹ باتیں کروں گا. اصل میں یہ آخر میں بتاؤں گا جو یعلم سرکم و جہرکم و یعلم ما تکسبون، اس پر بعد میں بات کروں گا. لیکن میں اپنے مرشد حضرت علامہ اقبال علیہ رحمہ کروڑوں رحمت نازل ہوں ان کی قبر پر کہ اگر ان کا نام کسی مجلس میں نہ لوں تو میں سوچتا ہوں میرا دن سارا ضائع ہو گیا ہے. آپ کہیں گے آخر وجہ کیا ہے؟ ایک آدمی مجھے پوچھ رہا تھا آپ علامہ اقبال سے اتنا پیار کیوں کرتے ہیں؟ میں نے جواب دیا اس لیے کہ انہوں نے زندگی میں نہ کسی کو چھوڑا ہے نہ کسی کو چھیڑا ہے. تو کل قیامت کے دن علامہ اقبال کا ہاتھ ہو میرا گریباں ہو بچنا مشکل ہو جائے گا. اور میں ان کو اس لیے بھی زیادہ یاد کرتا ہوں کہ وہ ہماری میری آپ کی اور پوری دنیا کی اخلاقی سماجی اور روحانی بیماریوں کے عظیم ڈاکٹر گزرے ہیں. عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی زدنی علما. I welcome all of you with the Islamic greeting. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. اسٹیج پر جلوہ افروز ہمارے نہایت ہی محترم جناب ایز اے ڈپٹی کمشنر اسٹیٹ گوا مہمان اعزازی ہیڈ مسٹرس صاحبہ گورنمنٹ ہائی اسکول بچہ والی فکر و فن، اسی سے ہے روشن خالد فکر و فن. میں نہایت ہی ادب کے ساتھ ہیڈ مسٹریس صاحبہ گورنمنٹ ہائی اسکول بچہ والی سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ اسٹیج پر تشریف لائیں اور اپنے خیالات سے نوازیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج کے محفل صدر IAS آفیسر شبیر صاحب، ہمارے ساتھ فاروق سر، استاد محترم چودھری شریف صاحب، اور بہت سارے نام تو نہیں میں جانتی ہوں، سبھی حضرات جو بھی اس مجلس میں بیٹھے ہیں سبھی کو السلام علیکم، خوش آمدید. آج کی یہ جو محفل منعقد کی گئی ہے اس کا مقصد تو ڈیٹیل میں میرے سامنے آیا نہیں کیا تھا، لیکن جہاں تک میں سمجھ پائی ہوں ایک انسٹیٹیوٹ کے اندر جس میں بچوں کی کوچنگ ہوگی اس کے لیے یہ منعقد کیا. یہ مبارکباد ہے آپ کو، بہت اچھا سٹیپ ہے. ساری یہ جو ماگری صاحب ہیں ان کا
इन्होंने इसको तो इनको भी मुबारकबाद में देती हूँ कि इनके जहन में इतनी अच्छी बात और इतना अच्छा स्टेप था जो इन्होंने उठाया है। ये तभी मुमकिन है कि आप सभी इनका साथ देंगे। ये एक आदमी के बस का काम नहीं है कि एक आदमी इसको चला पाए, ये नामुमकिन है। इस जगह में, इस इलाका में बहुत सारी परेशानियां हैं, दुश्वारियां हैं जो कि आसानी से यहाँ पर मिल नहीं पाएंगी, लेकिन उसके बावजूद आप सभी के इतने हौसले हैं, बुलंद हैं कि मैं अल्लाह की कसम हैरान हूँ कि अल्लाह ताला ने आपको किस किस सोच से नवाजा है। और एक छोटा सा इलाका है, बहुत दूर दराज है, लेकिन उसके बनिस्बत उसके बगैर देखती हूँ मैं कि आप लोगों की सोच और आपका जो तरीक़ाकार, आपके अंदर जो इखलाक़ात है, आपके अंदर जो तहज़ीब है, ये अपने आप में बहुत ही खूबसूरत है। अल्लाह ताला ने आपको वाक़या नवाजा है और इस धरती पे किसी नेक बुजुर्ग के कदम पड़े हैं जिसकी वसालत से आपको इतना कुछ मिला है। ये हर जगह पे ऐसा नहीं है। बच्चे को अच्छा बच्चा बनाए, उसको इंसान बनाए, जातों के चक्कर में मत डालें, खानदान के चक्कर में मत डालो, उसको एक अच्छा इंसान बनाए। कोशिश करें, आप भी करें, हम भी करेंगे। ये तो एक पैगाम था, लेकिन नहायत अदब और फ़ार के साथ अपने मुअज़्ज़ज़ मेहमान ख़ुसूसी IAS चौधरी मोहम्मद शबीर साहब, जो एज ए डिप्टी कमिश्नर स्टेट ऑफ गोवा, उनसे गुजारिश करूंगा कि वो स्टेज पर तशरीफ़ लाएं और अपने कीमती हयात से हमें मुस्तफ़ीद फरमाएं। खड़े हो जाए उनके साथ। शरीफ साहब और जितने भी टीचर्स हैं और हमारे मुअज़्ज़ज़ बुज़ुर्ग, हमारे नौजवान, हमारे बच्चे, सभी को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। ये जब मुझे ये जानकारी हासिल हुई कि ऐसा एक इंस्टीट्यूशन की एक बुनियाद डालने जा रहे हैं और हमारे ही गांव के जो पढ़े लिखे हमारे नौजवान हैं वो इस चीज़ की सरबराही करेंगे और उसको आगे लेके जाएंगे, तो ये यकीनन बहुत एक खुशी के लम्हात होते हैं कि जब हमारे अंदर से जो टैलेंट है वो आगे इंस्टीट्यूशन बनाता है और उसको लीड करता है। कोई भी इंस्टीट्यूशन जब हम बनाते हैं, जैसे हमने अभी कोचिंग इंस्टीट्यूट का जो इनॉग्रेट किया, इसको स्टार्टिंग में बहुत सारी दुश्वारियाँ, सब मुश्किलें आ सकती हैं, लेकिन मुझे ये पूरा यकीन है जैसे यहाँ पे सभी का पार्टिसिपेशन है, सारी एज यानी हमारे बुज़ुर्ग हैं, हमारे नौजवान हैं, हमारे बच्चे हैं, हमारी औरतें हैं, सारे लोग यहाँ पे यानी एक पेज पे हैं। तो ये चीज़ बहुत ज़रूरी होती है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन, किसी स्ट्रक्चर, किसी इंस्टीट्यूशन को कामयाब करने के लिए। तो मैं आप सभी को बहुत मुबारकबाद देता हूँ कि आप इतना जहन और इतनी सोच रखते हैं कि आप कोई भी ऐसा जो कंस्ट्रक्टिव कोई भी इनिशिएटिव होता है उसमें इतना बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं। मैं देख सकता हूँ सभी कोई बिजनेस अपना तजारत करता है, कोई डॉक्टर है, कोई टीचर है, सारे लोग टाइम निकाल के इधर बैठे हुए हैं और सभी बहुत सीरियस तरीके से इस चीज़ को ले रहे हैं। और ये बहुत एक पॉजिटिव डेवलपमेंट होता है किसी भी चीज़ के, किसी भी गांव के लिए। और आप यकीन करेंगे और बहुत सारे गांव में शायद बहुत सारी चीज़ें हो रही होंगी, लेकिन मुझे लग रहा है हमारे गांव बच्चा वाली, नाबना, कोलियाँ, सभी में सारे लोग बहुत एक अच्छी सोच लेके चलते हैं और जो भी कुछ अच्छा होता है उसमें सारे जुट जाते हैं और उसको एक कामयाबी की राह पे ले जाते हैं। जैसे कि ये कोचिंग इंस्टीट्यूशन जो मैंने पढ़ा है, सामने लिखा हुआ है कि ये नर्सरी क्लास से 10th क्लास तक है। तो मैं जितने भी जो ऑर्गेनाइज़र हैं, जो ऑर्गेनाइजेशन है, सभी को मैं ये रिक्वेस्ट करूँगा कि आप जितना भी टैलेंट पूल है वो आप लेके आएँ, जितने अच्छे टीचर्स हैं उनको लेके आएँ, और पेरेंट्स जो हैं वो भी अपना जो भी बच्चों को यहाँ लाएं और एक ट्रस्ट जो है वो रखें ऑर्गेनाइजेशन पे, तो और इसको कामयाब तरीन इंस्टीट्यूशन बनाएं। यहीं से शुरुआत करके कल हम
जो कोचिंग इंस्टीट्यूशंस जो होती है, नीट का एग्ज़ाम जिसमें मेडिकल डॉक्टर बनते हैं, इंजीनियर बनते हैं, देन उसके बाद यूपीएससी का एग्ज़ाम होता है, जेकेपीएससी का, वहाँ पे भी हम बच्चों को तालीम दे सकते हैं। और मैं भी आज अगर मैं शुरुआत में अगर साथ हूँ तो इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा जब मुख्तलिफ मरहलों पे जब ये इंस्टीट्यूशन होगा, मैं इंशाल्लाह नज़र रखूँगा क्या चल रहा है, जहाँ पे भी अगर मेरी ज़रूरत होगी तो मैं अवेलेबल रहूँगा। शुक्रिया सर। लेकिन सबसे ज़्यादा है कि ये जो आप सारे यहाँ पे रहने वाले हैं, आपको साथ रहना है, तभी जो है कामयाबी मिल पाएगी। कोई जिस चीज़ की शुरुआत की है, मैं रब की बारगाह में दुआ करता हूँ रब्बे जुल जलाल अपने फजल और करम के साथ इन बच्चों में वो हौसला, वो ताकत, वो कुव्वत अता फरमाए। आने वाला वक्त इनके लिए आसान दर आसान हो। और मैं एक बात कह करके अपनी बात को ख़त्म कर रहा हूँ कि जितने हमारे मेहमान हमारे बीच में तशरीफ फरमा हैं, उन सब से आपने यके बाद दीगर गुफ्तगू सुनी। सुनने का मकसद सिर्फ यही है कि जिस तरह मेरे प्यारे अजीज और अफसर चौधरी शब्बीर साहब, जिन्होंने कुरान करीम के ताल्लुक से अल्लाह पाक ने जब अपने नबी को पैदा फरमाया तो खुदाबंद कुद्दूस नबी के लिए जब कुरान को नाजिल किया तो सबसे पहली आयत जो कुरान की नाजिल की अल्लाह पाक ने, वो इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़, कि ऐ महबूब पढ़ो। तो मतलब यह है कि पढ़ाई एक अहम चीज़ है। खुदावंद कुद्दूस हमें दीन और दुनियावी तालीम से अल्लाह हम सबको माला माल फरमाए और खुदावंद कुद्दूस हम सबको साथ इकट्ठा रह करके चलने की तौफीक अता फरमाए।